Hello, good morning everyone. My dear students, in this current scenario of COVID 19, I have always been concerned for you. I really miss you a lot. That's why we keep making efforts to run your study smoothly and make you creative and meditative while staying at home. So, today we have with us a very renowned and eminent personality, Dr. Sangeeta Nehra. She will share her knowledge with you all on Mother's Nature, Cradle, and COVID 19 outbreak. She will let you know how Mother Nature can benefit us, how we can boost our immunity with Ayurveda amid COVID 19. Dear students, what I felt personally about her, definitely I would like to share with you. She has always believed in giving to others but never desired anything in return. She has a very kind heart, sympathetic and compassionate heart for everything, whether plants, animals, and for every human being. I feel myself fortunate enough to have her among us today, sharing her valuable thoughts with us. Thank you, ma'am, for giving us your precious time. My students are very eager to listen you. Let's start the session. Good morning, everyone. Today, we have with us a renowned personality, Dr. Sangeeta Nehra, who has spared a few moments from her precious time for the students of Shah Satnamji Girls' School Sirsa to share her views on the global pandemic COVID-19. Before we start, I would like to introduce her to our audience. A gold medalist in BAMS from MDU Rohtak, Dr. Nehra has worked for a long period as a medical officer in the rural areas of Haryana. In 2006, she completed her LLB and then PG diploma in nutrition along with a certificate course in Panchakarma. Later, in 2008, she joined Ayush as a state coordinator, where currently she is the director for the state of Haryana. She also completed her MD Ayurveda on the subject study of Belpatra and its effect on immunity. In the last 3 years of study during her MD, she also served the HIV patients and gave relief by emotional, social, and spiritual counseling. She visits nationally and internationally to deliver lecture and present papers on spiritual science, Ayurveda, yoga, and naturopathy. She has also authored 4 books related to Ayurveda, and currently she is working on her 5th and 6th book titled as Pran One Conscious Breath and Co-Relationship Between Nakshatras, Trees and Us. She has a special compassion towards plants and animals. She and her team has re-established the Gaushalas in the shape of pyramids and have saved many cows and animals. The animals have been restarted to be buried respectfully, then to be sold as mere bone and flesh. She has got various awards such as the Brahma Vidvarishta Award 2019, the Mahakaruna Award 2017 for her outstanding contribution in promoting meditation and science of spirituality, the Make in India Award for her contribution in the field of administration, the Creativity Award for her selfless work in the field of health sector given by the delegation from Vietnam organized by the India Book of Records, the Award for Excellence for outstanding commitment towards promotion of yoga given by the Honorable State Ayush Minister of the Central Government, the Social Service Excellence Certificate by Honorable Chief Minister of Haryana. She has also organized various rallies at district and block level named as Nai Rahein against female feticide. She has also written various articles and poems on Ayurveda, female feticide and got them published in local newspapers. She has also received lots of appreciation by officers and society for her participation and conducting talk shows as an expert on Ayurvedic herbs. She also conducts question answer sessions as an Ayurveda expert on Radio Jingle and Sanjeevani All India Radio. She was elected as a president of Ayurveda and is a member of INO,
and Pyramid Spiritual Scientist Movements and International Women Club India. But the list does not end here. And now, taking no more time, I welcome ma'am to share her valuable words with us. Welcome ma'am. थैंक यू शीला पुनिया मैम। तो चलो शुरू करते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये मेरे बहुत ही दिल के नज़दीक है। क्योंकि जो मदर नेचर है, हम सब उसी के आधार पर ही यहाँ पर एक तरीके से अपना जीवन जीते हैं। तो मदर्स नेचर क्रेडल और कोविड-19 का क्या संबंध है, इसी के बारे में आज हम एज ए आयुर्वेदा डॉक्टर, एज ए डाइटिशियन, एज ए योगा एंड नेचुरोपैथी स्पेशलिस्ट और एज ए पंचकर्मा स्पेशलिस्ट मैं आपको कुछ जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो हमारी दिनचर्या में होनी चाहिए उसके बारे में आज हम बताने जा रहे हैं। मदर्स नेचर, इसकी जो डेफिनेशन है वो मैंने कहाँ से सीखी। इसकी डेफिनेशन मैंने सीखी, एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है कॉजल बॉडी एंड द ईगो, जो कि ऑर्थर पॉल की लिखी हुई है। आज से 100 साल पहले इस पुस्तक को लिखा गया और कुछ ऑथर्स ने मिलके इसके 40 से 43 के करीब इसके वॉल्यूम बनाए। और वो वॉल्यूम बनाने के बाद उन्होंने कहा कि जो ये पूरी प्रकृति है, पूरा जो सृष्टि क्रम है, उसके हिसाब से हमें अपना जीवन जीना चाहिए। यानी कि जो मदर नेचर है उसमें उन्होंने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे माँ अपने बच्चे को 9 महीने गर्भ में रखती है और वो उसका पालना करती है, और उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है और जब पैदा होता है तो उसके बाद वो बाहर उसको चलना सिखाती है, बड़ा होना सिखाती है। इसी तरीके से जो मदर नेचर है, जैसे ही हम कहें कि ये प्रकृति माँ, तो हमारे मन के अंदर भी क्या क्या चीज़ें आती हैं। हमारे मन के अंदर चीज़ें आती हैं कि हमारे जो चारों तरफ एक ब्रह्मांड की ऊर्जा फैली हुई है। एक तो हम वो मदर नेचर में देखते हैं, दूसरा हम देखते हैं कि हमारे जो चारों तरफ के पेड़ पौधे हैं हम उसको देखते हैं, और क्या देखते हैं हम उसमें देखते हैं कि चारों तरफ हमारे जो पक्षी हैं, पशु हैं, वो मदर नेचर के अंदर रहते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मदर नेचर और हमारा एक ह्यूमन का, यानी कि जो एक मनुष्य है, उनका एक बहुत गहरा संबंध है। तो मदर नेचर क्या करती है कि वो उसको सभी चीज़ों को संभाल के रखती है। यानी कि अगर हम ब्रह्मांड की ऊर्जा की बात करें तो ब्रह्मांड की ऊर्जा हम कैसे लेते हैं, हम अपनी ब्रीदिंग से लेते हैं, सांस से लेते हैं। जो आज की आवश्यकता है, हम कितना ही अच्छा खाना खा लें, लेकिन अगर हम प्रॉपर सही ढंग से सांस नहीं लेते हैं तो शायद हम हेल्दी नहीं रहेंगे, हम स्वस्थ नहीं रहेंगे। इसलिए मदर नेचर हमें ब्रह्मांड की ऊर्जा देती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ब्रह्मांड की ऊर्जा कैसे देती है कि जैसे सूरज निकलने से पहले हम बोलते हैं कि अमृत वेला में उठना चाहिए। जो बाहर हमारे जितने भी ग्रह हैं और जितने भी हमारे तारे हैं, हमारी गैलेक्सीज़ हैं, वो सब हमें ब्रह्मांड की ऊर्जा देते हैं। लेकिन क्या हम ये ब्रह्मांड की ऊर्जा ले पाते हैं? क्या हम इस बात को एक वैज्ञानिक तौर पे समझते हैं कि अरे हमारे चारों तरफ तो ये ब्रह्मांड की ऊर्जा मौजूद है? मदर नेचर यानी कि जो प्रकृति माँ है वो हमें कितना कुछ देती है, लेकिन हमारे पास लेने की एक शक्ति होनी चाहिए। तो हम क्या ले सकते हैं? यस, हम ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हम सुबह योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उससे हमें कितनी सारी शक्ति मिलती है। फिर उसके बाद चारों तरफ जो पेड़ पौधे हैं, हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। नॉट ओनली ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ साथ उसको कहते हैं प्राण ऊर्जा, जो हमें पौधों से मिलती है। पौधों से सिर्फ हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती, पौधों से हमें उसकी एनर्जी मिलती है, उसकी शक्ति मिलती है। अलग अलग तरह के पौधे, जैसे कि पीपल का पौधा, वट वृक्ष का पौधा, अर्जुन है, आंवला है, हरितकी है, कितने कितने अनेकों हमारे चारों तरफ पौधे हैं। लेकिन क्या हम उस ऊर्जा को लेना सीख पाए? और किस तरीके से कोविड-19 और मदर नेचर, इन दोनों का संबंध हम कैसे स्थापित करेंगे, ये स्टेप बाय स्टेप हम आगे सीखते जाएंगे। लेकिन हमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि हमें उस मदर नेचर के बारे में, कि यानी कि ब्रह्मांड की ऊर्जा, और दूसरा पेड़ पौधे, और उसके साथ हमारे पशु पक्षी, जिनकी आवाज़ों को सुनकर हम सुबह सोकर उठते हैं। उससे क्या होता है
उसके बारे में हम आगे, जब हमारा रोग प्रतिरोधक शक्ति कैसे बढ़ती है उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो मदर नेचर का मतलब ये है कि वो जो नेचर जिसमें जो कॉजल बॉडी एंड द ईगो, जिस पुस्तक का नाम लिया गया, उसमें बताया कि हर पौधे के साथ एक देवता होता है। लेकिन हम तो ये बात जानते ही नहीं थे कि हर पौधे के साथ एक देवता होता है। उसको इस पुस्तक में बताया गया कि मिनी गॉड्स, कि जो भगवान के रूप में उनकी रक्षा करते हैं। मदर नेचर सभी पौधों की रक्षा करती है। ब्रह्मांड ऊर्जा के साथ वो पौधों की रक्षा होती है, पक्षियों की रक्षा होती है, और उसी की शक्ति से आज हम यहाँ पर जिंदा हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम कोई पूजा पाठ करते हैं, आंखें बंद करते हैं, तो हम भगवान को याद करते हैं। इसी तरीके से जब हम यहाँ पर, हमें हमारे चारों तरफ जो पौधे हैं वो क्या सोचते हैं, जो पक्षी हैं वो क्या सोचते हैं, उनके लिए हम भगवान हैं, ताकि हमारा और पशु पक्षी और पौधों का एक रिश्ता स्थापित हो सके। यही मदर नेचर्स क्रैडल है, यानी कि जहाँ पर मदर जो प्रकृति है वो एक माँ के रूप में हमें पालती है। लेकिन हम अभी तो दवाइयों पर चले गए, कभी आयुर्वेदा की दवाइयाँ, कभी एलोपैथी की दवाइयाँ, कभी होम्योपैथी की दवाइयाँ, कभी यूनानी की दवाइयाँ। उससे पहले हमारे पास जो चीज़ मौजूद है उसी के साथ रहते हुए हम कोविड-19 से टक्कर ले सकते हैं। तो हमें इतनी सी बात, ये बात समझ आ गई। अब बात करते हैं हम कोविड-19 की। कोविड-19 को भी नाम दे दिया गया, को से कोरोना, फिर वी से वायरस, डी से डिजीज़, और 2019 में आया तो कोविड-19 बन गया। अब कोविड-19 जैसे जो वायरसेस हैं, अनेकों वायरसेस हमारे चारों तरफ मौजूद होते हैं। लेकिन जैसे एक वायरस था SARS और COVID-2 जो वायरस था, उसी के नाम के आधार पर ही इसका नाम बदला गया कोविड-19। यानी कि जो सीवियर एक्यूट जो हमारी रेस्पिरेटरी डिजीज़ेज़ होती हैं, उसी के आधार पर इसका नाम कोविड-19 दे दिया गया। अब अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम या हमारा जो इम्यून सिस्टम है, वो सिस्टम कैसे ठीक रहेगा? हम कितने दिन तक दवाइयाँ खाते रहेंगे, या हम कितने दिन तक हम मास्क डालकर रहेंगे, या हम कितने दिन तक हम जो हमारी बाहर के प्रोसीजर्स हैं उनके ऊपर हम डिपेंडेंट रह जाएंगे कि अच्छा चलो जी हम 2 साल तक मास्क डाल लेते हैं, या हम 2 साल तक दवाइयाँ खा लेते हैं। तो क्या दवाइयाँ खाने से जो हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति है, क्या वो बढ़ेगी? वो शायद नहीं बढ़ेगी। वो बढ़ेगी कैसे? जब हम ये बात समझेंगे कि आखिर ये जो इम्यून सिस्टम है, ये इम्यूनिटी है, ये क्या चीज़ है, कैसे हमें समझ आएगी, और कैसे इसका संबंध हमारे मदर नेचर के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब तक हम खुद में अपने आप में स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, खुद में हमारे अंदर शक्तियाँ नहीं आएंगी, तब तक हम कोविड-19 से शायद टक्कर नहीं ले सकते। दवाइयों के ऊपर आधारित होने पर या हम एक डिस्टेंस मेंटेन करने पर कितने दिन तक हम इस ज़िंदगी को चला सकते हैं। और घर में बैठ के जिस तरीके से हमारा एक रिलेशनशिप अभी बन रहा है या टूट रहा है, हम उसको क्या कहेंगे, ये बात भी हमें अभी समझ नहीं आने लगी है। तो अब हम चलते हैं कि हम ये बात करें कि आखिर जो इम्यूनिटी है वो क्या चीज़ है, और इम्यूनिटी का जो संबंध है वो हमारे शरीर के साथ, हमारे सांस के साथ, हमारे प्राण के साथ, और इसके साथ साथ जो हमारा संबंध है हमारा मन के साथ। इन तीनों का क्या संबंध है, तो इसके बारे में अब हम एक पिक्चर के माध्यम से, एक पेपर के माध्यम से ये बात हम समझते हैं। तो आप देख रहे हैं, ये मैंने एक पेपर लिया है। मान लो कि हम इसकी बात कर रहे हैं, ये शरीर है। अब शरीर कैसा होता है कि इसकी परतें होती हैं। जैसे कि मान लो आपको ये सामने दिख रहा है, तो ये शरीर है। लेकिन शरीर को अगर मैं हल्का सा तिरछा करके और ऐसे दिखाती हूँ, तो इसकी ये 7 परतें होती हैं, जिसको कि आयुर्वेद में बोलते हैं कि भाई अगर आप एक रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ओज, ओज का मतलब आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति, आपकी इम्यूनिटी। तो ये तो हो गया शरीर। अब शरीर के साथ क्या हम शरीर ही हैं? नहीं, शरीर के साथ हमारा जो सांस चल रहा है, जो सांस चल रहा है, अब मैंने वो दूसरा पार्ट ले लिया, ये मेरा सांस है। अब 2 हिस्से हो गए, लेकिन सांस के अंदर भी हम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो उसके अंदर भी इस तरह की परतें होती हैं।
इसीलिए ये मैंने जो पेपर है ये परत के हिसाब से ही बनाया है। उसके बाद तीसरा हिस्सा होता है हमारा ये मन। अब ये मन का कोई साइज़ नहीं होता, कितना मर्जी आप सोच सकते हो और कितना मर्जी आप नहीं सोच सकते, क्योंकि जो डॉक्टर जो डिस्पेंजा हैं वो बोलते हैं कि एक दिन में 70,000 विचार आते हैं। तो क्या हम 70,000 विचारों को पूरा कर लेते हैं? नहीं करते, कुछ ही विचार हमारे पूरे हो पाते हैं। तो हमें जो ये मन का साइज़ है, ये मन हो गया, ये प्राण हो गया और इसके साथ ये शरीर हो गया। तो अब देखो, आप जो मैंने आपको समझाया था कि अगर ये शरीर का आखिरी हिस्सा है, ये वाला शरीर का आखिरी हिस्सा है और ये प्राण शरीर का पहला हिस्सा है, इन दोनों का कितना गहरा संबंध है। जैसे कि एक दीवार के चारों तरफ, अगर एक दीवार है, एक तरफ एक घर है, दूसरी तरफ दूसरा घर है, तो वो जो दीवार है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से जो शरीर है और जो प्राण है, इन दोनों का जुड़ाव बहुत ज़रूरी है समझना। क्यों? क्योंकि आज मैं इस बात पे चर्चा करने वाली हूँ कि अगर इन दोनों का संबंध अगर हमें स्थापित हो जाता है, हमें ये बात समझ आ जाती है कि शरीर और प्राण का कितना गहरा संबंध है, तो हमें ये बात समझ आ जाएगी कि हमें कैसे अपना नाक साफ करना चाहिए, कैसे हमें नहाना चाहिए, और जिस तरीके से अगर हम अपने उस जीवन में बदलाव लाते हैं तो कितनी जल्दी कोविड-19 जैसे वायरसेस से हमें छुटकारा मिलता है। ये सब बातें मदर नेचर की हैं, प्रकृति ने हमें ऑलरेडी ये बातें सिखाई हुई हैं। और कैसे सिखाई हुई हैं कि शरीर और ये प्राण, ये शरीर हो गया और ये मन हो गया। तो मन को तो हम एक तरफ रख देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, ताकि मन से पहले हम जो प्राण शरीर है और शरीर को हम समझ लें। शरीर का आखिरी परत हमारा त्वचा है, ये त्वचा है, और उसके बाद फिर हमारा प्राण शरीर आता है। अगर मेरा प्राण शरीर, यानी कि अगर मैं सांस ठीक नहीं लेती हूँ, तो मेरी रोग प्रतिरोधक शक्ति कमज़ोर हो जाएगी। इसीलिए योग, प्राणायाम, ध्यान बहुत बहुत ज़रूरी है जीवन में करने के लिए। और अब दो रास्ते हैं, एक रास्ता इधर से है, एक रास्ता इधर से है। आप सांस के माध्यम से, योग के माध्यम से भी ठीक हो सकते हैं, और खाना अगर खाते हैं और शरीर के अंदर जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से जब खाना जाएगा तो आखिर में जाके वो रोग प्रतिरोधक शक्ति बनेगी। रोग प्रतिरोधक शक्ति कैसे बनेगी? कि जैसे एक बीज है, बीज से धीरे धीरे तना होता है, तने से फिर टहनियाँ निकलती हैं, फिर पत्ते निकलते हैं, फिर उसके बाद फूल आते हैं और फूल के बाद फल लगता है। सेम इसी तरीके से हमारे शरीर में भी रोग प्रतिरोधक शक्ति एकदम से नहीं बनती है। ये बात हमें यहाँ पर बहुत ज़रूरी समझनी है, क्योंकि कोविड-19 का समय काफ़ी लंबा हो चुका है और हो सकता है आने वाले समय में और भी लंबा चले। इसलिए हमें ये बात यहाँ पर समझनी है। हर घर में इस बात का समझना बहुत आवश्यक है कि हम रोग प्रतिरोधक शक्ति को कैसे बढ़ाएं। तो हमारा खाने पीने का सिस्टम ठीक होना चाहिए, ताकि हम एक बीज से उस पौधे को सही बना सकें। जैसे कि मैंने अभी बताया कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ओज, यानी कि जैसे जैसे हम जो खाना खाएंगे, तरीके से खाना खाएंगे, उसके बाद ही ओज यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति बनेगी। अब रोग प्रतिरोधक शक्ति हमने इस तरीके से बना ली। अब बस एक पॉइंट और समझना है कि ये हमारा शरीर हो गया, ये हमारा प्राण हो गया, और उसके साथ ये मन हो गया। अगर मेरा मन दूषित है, मेरा मन खराब है, अगर मैं जेलस करता हूँ, या मैं सेल्फिश हूँ, या मेरे को लालच है, या मैं अपने टाइम को सही ढंग से व्यतीत नहीं करता हूँ, तो मेरे मन से मेरा प्राण खराब होगा, और इस प्राण के साथ मेरा शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति भी खराब हो जाएगी, वो कमज़ोर हो जाएगी। फिर हम चाहे कितनी गोलियां खाते रहें, रोग प्रतिरोधक शक्ति ठीक नहीं हो सकती। एज ए आयुर्वेदा डॉक्टर मैं ये बात समझाना चाहती हूँ कि इन तीनों शरीरों का बहुत बहुत गहरा संबंध है। अगर मेरा मन खराब है तो मेरी रोग प्रतिरोधक शक्ति, अगर मैं अश्वगंधा भी खा लूँ तो भी नहीं बन सकती है। ये बात 100% सही है। क्यों? क्योंकि तीनों का संबंध बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना।
इसी तरीके से दूसरी बात यह है कि अगर हम प्राण शरीर हमारा ठीक है, हम सही ढंग से सांस ले रहे हैं, हमारे पूरी शरीर में प्राण ऊर्जा जा रही है, तो वो प्राण ऊर्जा से मेरा शरीर की सातों परतें ठीक होती हैं। अब हम चलते हैं आगे। एक मैं रिसर्च की बात आपको बताने वाली हूँ। जिस रिसर्च को मैं यहाँ पर आपके सामने बताना चाहती हूँ वो रिसर्च है क्लिंग हार्ट इंस्टीट्यूट, जो कि अमेरिका में जब ये कोरोना वायरस आया था उस वक्त कुछ बातें उन्होंने अपने रिसर्च बेसिस पे कुछ एक पेपर पब्लिश किया था। उसमें से 3 बातें जो मुख्य है, जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और जो नॉर्मल रूटीन में हम कर सकते हैं, उसमें से जो सबसे पहला रिसर्च है वो रिसर्च है मेलाटोनिन। उन्होंने एक मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन बताया। उन्होंने कहा कि अगर मेलाटोनिन हार्मोन अगर सही ढंग से हमारे शरीर में रिलीज़ होता है तो मेलाटोनिन हार्मोन से हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है और हमारी जो फेफड़ों में सूजन आती है और या रेस्पिरेटरी सांस की कोई दिक्कत होती है, तो उससे क्या होता है कि जैसे वो मेलाटोनिन हमारे शरीर में स्क्रीट होता है, निकलता है, तो हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति और साथ के साथ जो सूजन अगर आती है, कहीं इन्फ्लेमेशन आती है, तो वो ठीक होने लगती है। अच्छा, तो अब ये बात है कि जो मेलाटोनिन है आखिर ये कहाँ से रिलीज़ होता है? तो दूसरे देश के जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि मेलाटोनिन की गोलियाँ खाते हैं। वो एक सिंथेटिक मेलाटोनिन होता है, उसकी वो गोलियाँ या कैप्सूल बनाते हैं और उसको खाते हैं। लेकिन हमारा मदर नेचर क्या कहता है? हमारा मदर नेचर ये कहता है कि अगर आप बाहर सुबह उठकर उस ब्रह्मांड की ऊर्जा में आंख बंद करके बैठते हो, तो आंख बंद करने से आपकी शरीर में मेलाटोनिन रिलीज़ होता है, यानी कि वो एंजाइम वहाँ से वो निकलता है। कहाँ से निकलता है मेलाटोनिन? उसको बोलते हैं पीनियल ग्लैंड, जिसको कि आज की डेट में हम अगर वेदों की बात करें तो उसमें आता है कि तीसरी आँख। जैसे हर किसी के पास वो तीसरी आँख है, हर किसी के पास, यानी कि पीनियल ग्लैंड। सिंपल सी बात है कि वो जो तीसरी आँख है वो हर किसी के पास है, लेकिन वो आँख खुलती कब है? वो आँख जब खुलती है जब हम अपनी आँखें बंद करें, और आँख बंद करने के बाद जो हमें अंदर से वो पीनियल ग्लैंड जब उसके अंदर से वो हार्मोन निकालता है मेलाटोनिन, तो उसके बाद हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। मेलाटोनिन हार्मोन जब रिलीज़ होता है तो उससे हमारी स्किन के ऊपर, यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर, हमारी त्वचा के ऊपर एक शाइनिंग आती है। वो जो शाइनिंग है, उस शाइनिंग से हमें खुद पता लगता है कि हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति मजबूत होती है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? मेलाटोनिन को बोला जाता है द हार्मोन ऑफ डार्कनेस। तो इसीलिए रिसर्च क्या कहा रिसर्च ने कि अगर आपने देखा होगा कि बच्चे हैं उनको कोविड-19 नहीं है, वो वायरस नहीं फैलता है। क्यों नहीं फैलता? क्योंकि बच्चे ज़्यादातर सुकून से सोते हैं, आंख बंद करते हैं और उनकी नींद ज़्यादा होती है। इसी तरीके से अगर हम बड़े लोग जब हम अपनी आंखें बंद करके आराम से अपने साथ बैठें और उस ब्रह्म मुहूर्त में, जैसे कि मदर नेचर ने हमें पूरे ब्रह्मांड की शक्तियाँ दी हुई हैं, ब्रह्मांड की ऊर्जा दी हुई है, पेड़ों की ऊर्जा दी हुई है, जिसके पास बैठ के हम अगर योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, आंखें बंद करते हैं और आंखें बंद करने के बाद हम उस मेलाटोनिन जो रिलीज़ होता है, इसी को कहते हैं हम कि डिवाइन हार्मोन, कि जिसकी वजह से हमारी तीसरी आँख, यानी कि हमारा भीतर का रोशनी जब पैदा होता है, इसी को दिव्य चक्षु बोल सकते हैं, पीनियल ग्लैंड बोल सकते हैं, मेलाटोनिन का रिलीज़, हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, उसको बोल सकते हैं। किसी भी तरीके से हम समझें, लेकिन ये बात समझें कि मेलाटोनिन स्क्रीट होने से हमारी शरीर की इम्यून सिस्टम बढ़ता है, मजबूत होता है। दूसरा पॉइंट है कि हमारा जो हमिंग साउंड, इन्होंने इस रिसर्च में बताया कि हमिंग साउंड होती है। हमिंग का मतलब होता है कि जैसे हम योग करते हैं तो उसमें बताया गया है कि जैसे हम भ्रामरी प्राणायाम है, ये जो साउंड है हमिंग साउंड, या फिर जब हम सांस को बाहर फेंकते हैं, तो जैसे ही सांस को हम बाहर फेंकेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर हमारे जो नाक और जो साइनसेस हैं
उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है। अगर नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा तो उससे हमारे साइनसेस के अंदर या बाहर से कोई वायरस जाने की संभावना कम हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2 क्या होगा कि जो इन्फ्लेमेशन है वो भी नहीं होंगे, जो टॉक्सिन्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो आपने देखा होगा कि जब हम पुराने ज़माने में या कुछ साल पहले की बात करें तो हम सुबह सुबह जब सोकर उठते थे तो नाक साफ़ करते थे, और नाक साफ़ जैसे ही करते थे तो उसमें क्या होता था कि जैसे हम सांस को बाहर फेंकेंगे, इन्होंने कहा है कि जब आप एक्सहेल करते हो यानी कि सांस को बाहर फेंकते हो, जैसे ही आप सांस को बाहर फेंकोगे तो आपके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे वो बढ़ेगा आपके अंदर वो रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेगी और आपके साइनसेस के अंदर जो नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा उससे आपके बाहर से अंदर जाने का जो वायरसेस हैं, बैक्टीरिया है, उसका लेवल भी कम हो जाएगा। तो इसलिए जो नाइट्रिक ऑक्साइड समझ लें या फिर हम रेचन समझ लें कि जैसे कि सांस को बाहर फेंकना, तो मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ कि जब आप सुबह नाक साफ़ करें तो वो नाक साफ़ करने की प्रक्रिया कैसे होनी चाहिए। क्योंकि आज की डेट में मुझे ये बात समझ आती है कि अगर हम प्रैक्टिकल नहीं हैं या अगर हम किताब की कोई जानकारी लेते हैं सिर्फ और उसको अनुभव में नहीं लाए हैं तो शायद वो जानकारी है, फिर वो उस जानकारी के साथ हम ज्ञान शब्द नहीं जोड़ सकते या उस जानकारी के साथ हम ज्ञान या प्रज्ञा नहीं जोड़ सकते, विजडम नहीं जोड़ सकते। तो अगर जो चीज़ हम रोज़ कर सकते हैं उन्हीं चीज़ों के ऊपर चर्चा करना अच्छा रहेगा। तो मैं आपको नाक साफ़ करने की विधि बताती हूँ जिससे हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल बढ़ता है और हम हमेशा हमेशा फ्रेश रहते हैं। तो मैं बताती हूँ आपको कि एक बार इधर गर्दन घुमाएंगे, एक बार इधर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर। ये विधि है नाक साफ करने की, इसको बोलते हैं ग्रीवा चक्र। जो ग्रीवा चक्र है इससे क्या होगा कि जो हमारे साइनसेस हैं, साइनसेस का मतलब कि यहाँ पे जो मैक्सिलरी साइनस है, एथमॉइडल साइनस है, स्फिनॉइड साइनस है और ऊपर जो फ्रंटल साइनस है, इसके अंदर हमारी जो नाइट्रिक ऑक्साइड जो लेवल है वो बढ़ता है और उससे हम हमेशा हमेशा स्वस्थ रहते हैं। जैसे कि पहले ज़माने में होता था कि हम पत्तों को इकट्ठा करते थे और धुआं कर देते थे, तो जिससे हमारे चारों तरफ के जो वायरसेस हैं वो अपने आप ही ख़त्म हो जाते थे। लेकिन आज की डेट में हम मदर नेचर को यूज़ ही नहीं करना जानते कि हमें उसका प्रयोग कैसे करना चाहिए। पत्तों को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ उन सूखे पत्तों को उठाइए, एक सुबह सुबह टोकरी में रखिए और टोकरी में रखने के बाद उसी में थोड़ा सा कपूर डालिए, 1 चम्मच घी डालिए और उसको आप सुलगा दीजिए। तो उससे क्या होता है कि जो फॉर्मेल्डिहाइड गैस होती है, फॉर्मेल्डिहाइड गैस, वो वहाँ से रिलीज़ होती है, जैसे आम के पत्तों में, आम की लकड़ी से। तो उसी लकड़ी की उस गैस से जो हमारे वायरसेस हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो सबसे पहले वेदों में क्या बताया जाता था कि आप हवन करिए, चारों तरफ जो आपका एनवायरनमेंट ठीक है तो आपके कमरे में क्या, घर में क्या, आपके आंगन में कहीं पर भी किसी भी तरह का वायरस आ ही नहीं सकता। तो इसीलिए हमें ये जो मदर नेचर ने जो हमें इतना बड़ा जो एक ट्रेजर खजाना दिया हुआ है, इनको हमें प्रयोग में लाना चाहिए। तो इस तरीके से हमने अभी नाक साफ करने की प्रक्रिया सीखी और उसके साथ एक ऑयल अभी आयुष मिनिस्ट्री ने भी निकाला है, अणु तेल करके। तो जो अणु तेल है वो बहुत 5000 साल पहले जब हमारे आयुर्वेद ग्रंथ लिखे गए थे तभी बता दिया गया था। तो उसमें कुछ ऐसे द्रव्य डाले गए हैं और उसके बाद हम नाक साफ करें और उसके बाद थोड़ा सा ऑयल अपने हाथ पे रखें और उसके बाद फिर उसको हम नाक में अप्लाई कर दें ताकि हमारे बाहर से कोई वायरस हमारे भीतर ना जा सके। अब तीसरी बात इस रिसर्च में क्या बताई गई, उन्होंने कहा कि आपको लगातार विटामिन सी लेना चाहिए। तो चलो ये तो एक मोटी मोटी बात होगी कि विटामिन सी का नाम याद आता है तो विटामिन सी की टेबलेट्स चल पड़ी हैं, लेकिन अगर मदर नेचर हमें कैसे विटामिन सी देती है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर कोई विटामिन सी की गोली नहीं ले सकता, या अगर वो विटामिन सी की गोली लेता है तो मेरा मानना है कि वो सिंथेटिक तरीके से हम उन गोलियों को लेते हैं। तो क्यों नहीं मदर नेचर ने जो हमें दिया है हम उन विटामिन सी की गोलियों को लें। जैसे कि आंवला, अभी सर्दियाँ आ रही हैं
तो बहुत सारा आंवला हमारे पास मिलता है, तो क्यों नहीं हम एक आंवला रोज़ खाएं। और एक आंवला जब हम रोज़ खाएंगे तो हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी कभी नहीं होगी। इसी तरीके से जो हमारे फ्रूट्स हैं, नींबू है, नींबू पानी तो हम पी सकते हैं, बहुत सिंपल है। उसमें खांड डालो, शक्कर डालो और उसमें थोड़ा सा काला नमक डालो, सेंधा नमक डालो और अपनी शिकंजी बनाएं और उसको हर 1-2 घंटे के बाद उसको लेते रहें। बहुत सिंपल है। उसके साथ साथ कुछ हमारे आयुर्वेदा के जो द्रव्य हैं, जैसे हरितकी है, हरड़ है, वो हरड़ लेना चाहिए। उसके साथ और भी कई द्रव्य हैं, जैसे कि जो बेल है, बिल्व लगता है तो हम बेल के फल का मुरब्बा खाते हैं, बेल के फल का जूस पीते हैं। तो अगर बेल के पत्ते भी खा लें हम सही ढंग से, प्रॉपर अगर ढंग से तोड़ते हैं, तो भी हमारी बॉडी में विटामिन सी की कमी नहीं होती। और ये तो हमारे चारों तरफ वैसे भी मिल जाते हैं। तो इसके पीछे साइंटिफिक आधार क्या है? वो है कि 2 शब्द हैं, उसको बोलते हैं फार्मेकोडायनेमिक और फार्मेकोकाइनेटिक। यानी कि फार्मेकोडायनेमिक का मतलब कि डायनेमिक का मतलब होता है कि जो हमारा जीवन है ना, वो हमेशा हर क्षण बदल रहा है। और जब अगर वो बदलता है, तो अगर हमारे डेली रूटीन में विटामिन सी हम नींबू लेकर पूरा कर सकते हैं, हम संतरा खा के कर सकते हैं, अमरूद खा के कर सकते हैं, अनार खा के कर सकते हैं, कितनी सारी चीज़ें प्रकृति ने हमें दी हुई हैं। तो फिर हम वो विटामिन सी की टेबलेट के बजाय क्यों नहीं हम नींबू पानी और ये हमारे फ्रूट्स लें, जिससे कि वो एक फार्मेकोडायनेमिक का मतलब कि हम निरंतर हमारे खून में वो एक चीज़ आ जाए जिसकी वजह से कभी भी विटामिन सी की कमी ना हो और ये वायरस अंदर आने ही ना पाए, और अगर आ जाए तो वो ख़त्म हो जाए। यूरिन के थ्रू बहुत सारी चीज़ें बाहर एक्सक्रीट हो जाती हैं। ये चीज़ है फार्मेकोडायनेमिक। फिर है फार्मेकोकाइनेटिक। काइनेटिक का मतलब होता है कि हमारी एनर्जी जो है वो कैसे बदलती है। जैसे कि हम मान लो कि कोई खाना बनाते हैं तो क्या होता है कि हम कच्ची सब्जियां जब गैस पे चढ़ाते हैं तो उसके बाद उसका जो पकती है वो, तो उसका स्वाद बिल्कुल अलग हो जाता है, कच्चे से पके हुए का स्वाद अलग होता है। ऐसे ही जब हम विटामिन सी लेते हैं तो हमारे जब शरीर में वो आंवले के रूप में, हरड़ के रूप में, या फिर हम बेल के रूप में या नींबू के रूप में ऐसे जब जाएंगी, तो वो अपनी ऊर्जा से हमारे शरीर के अंदर एक तरह की शक्ति पैदा करेंगी। और वो जो शक्ति पैदा करेंगे उससे हमारे पूरे सारी जितनी भी धातुएं होती हैं हमारे शरीर की, वो सही ढंग से बनती हैं। फिर वायरस कहाँ से आएगा? फिर तो वायरस आने का कहीं जगह ही नहीं है उसके पास। इसी तरीके से कुछ चीज़ें हैं, जैसे काली मिर्च है, वो बहुत अच्छी है। डेली रूटीन में हमें काली मिर्च खानी चाहिए। काली मिर्च से क्या होता है कि जो हमारी एक्स्ट्रा जहाँ पर टॉक्सिन्स पड़े हुए होते हैं वो हमेशा के लिए वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। नंबर 2, एक चीज़ और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी, मुझे याद आ गया है कि हरड़ हम पहले बचपन में बच्चों को रगड़ के देते थे, हरित की। आज की डेट में मदर नेचर ने इतना कुछ हमें दे रखा है और हम वो हरड़ जो है भूल गए हैं। हरित की हमें हर रोज़ सुबह सुबह लेना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि जिससे हरड़ एक ऐसी चीज़ है जिसमें 5 रस होते हैं। उसको है कि मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त, कषाय। एक लवण रस उसमें नहीं होता। तो जब हम ये 5 रस लेते हैं तो हमारे शरीर में जो 5 रस पहले से मौजूद होते हैं उनमें उनकी पूर्ति हो जाती है। इसीलिए हमें हरड़ डेली रूटीन में लेना चाहिए। बस इसमें थोड़ी सी बात ये है कि हमें वो अभ्यास करने की ज़रूरत है कि हम थोड़ा मदर नेचर के जब करीब जाएंगे तो हम इन चीज़ों का अवश्य ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से जो मदर नेचर है वो हमें कितना कुछ देती है। और जो कोविड-19 है वो तो एक छोटी सी बात है कि जो वायरस होता है वो कुछ समय ज़रूर लेता है। जैसे कि कुछ उसके अगर हम सिम्टम्स देखें, लक्षण देखें तो बुखार आ जाएगा, फटीग, हमें थकावट होने लगेगी या खांसी हो जाएगी, कुछ इस तरीके के जो लक्षण हैं। और किसी को तो ये सिम्टम्स आते भी नहीं हैं, सिंपल बुखार आता है। तो इससे क्या होगा कि जो मदर नेचर है अगर आप उसके साथ रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो कोविड-19 जैसा ये वायरस है जो बॉडी में आ तो जाता है, उसके बाद वो चला भी जाता है। इतनी बड़ी बात नहीं है कि जिस तरीके से
हम इसमें फियर क्रिएट करते हैं या डर क्रिएट होता है, तो हमें डर क्रिएट नहीं करना, सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि जैसे ही डरेंगे हमारा जो रोग प्रतिरोधक शक्ति होती है वो सिकुड़ने लगती है। तो ये कुछ मुख्य बातें हुई जिसके बारे में जो मदर नेचर और कोविड-19 का जो संबंध है उसके बारे में बताया गया। अब 2-3 पॉइंट और जो जैसे कि हम जर्नली क्या करते हैं कि जैसे मान लो किसी को सीवियर इन्फेक्शंस हैं या किसी को स्पेसिफिकली कोई डिजीज़ है, उनको ज़रूर से ज़रूर कोविड-19 को लेकर ध्यान रखना चाहिए। और कुछ जो बुज़ुर्ग हैं उनको स्पेसिफिकली ध्यान रखना चाहिए। और जब हम क्वारंटाइन में चले जाते हैं तो क्वारंटाइन में जाने के बाद भी हमें योग, प्राणायाम और ये मेडिटेशन और कुछ हमारी जो हर्ब्स हैं उनका हमें ध्यान रखना चाहिए। अब एक चीज़ की चर्चा रह गई जो हम चर्चा करेंगे, मन की, कि ये मन को हम बाद में इसकी चर्चा करेंगे। तो आप देखिए कि जो मन है, इसका मन को बोलते हैं कि जो हमारा मन है, माइंड इज़ यूनिवर्सल, ऐसे बोला जाता है। माइंड का कोई लिमिटेशन नहीं है, उसको हम कितना मर्जी बढ़ा सकते हैं और कितना मर्जी उसको सिकोड़ सकते हैं। अगर मेरा मन खराब है, अगर मेरा मन अच्छा नहीं है, तो एक उदाहरण देकर मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि मैं एक पुस्तक पढ़ रही थी, द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, खुर्शीद भावनगरी की ये लिखी हुई है और वो अभी कनाडा में रहती हैं। और जब मैंने ये कहानी पढ़ी तो मेरे को पता लगा कि हम लोग अगर मन से अच्छे नहीं होते हैं तो हमारे उस पूरे जीवन पर या अगले आने वाले जीवन पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो एक छोटी सी कहानी का एक हिस्सा मुझे याद आ गया उसमें, कि जो खुर्शीद भावनगरी है वो पहले मुंबई रहती थी और उनके पड़ोस में एक व्यक्ति रहते थे। तो वो जो पड़ोस में व्यक्ति थे वो बहुत दान दक्षिणा देते थे, सुबह सुबह उठ के सबको चाय पिलाते, खाना खिलाते। लेकिन अंदर उनके एक भाव चलता था कि अगर मैं 200 लोगों का खाना खिलाता हूँ, 300 लोगों को खाना खिलाता हूँ, तो फिर कल को अगर मुझे कोई इलेक्शन लड़ना पड़ जाए या मेरे को कोई कहीं किसी का मेंबर बनना पड़ जाए या मुझे चेयरमैन बनना पड़ जाए म्यूनिसिपल कमेटी का, तो फिर लोग मेरे को वोट देंगे, मेरी वाही वाही होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो उसके मन के अंदर जो सारी बातें चल रही थी वो उसके अंदर स्टोर हो रही थी। अब खुर्शीद भावनगरी के जो 2 बच्चे हैं वो यंग एज में ही एक्सीडेंटल उनकी डेथ हो जाती है और डेथ होने के बाद वो यहाँ से जब हमारी मृत्यु होती है तो हम किसी और वर्ल्ड में चले जाते हैं। तो खुर्शीद भावनगरी कोमा में चली जाती है और उसके बाद वो सारा कुछ बेच के वो कनाडा शिफ्ट हो जाती है। तो ये रियल स्टोरी है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो जो उनके पड़ोस में जो व्यक्ति हैं उनके बारे में हमेशा खुर्शीद भावनगरी ये कहती थी कि देखो बच्चों, अगर आपको एक व्यक्ति बनना है ना, बहुत अच्छा व्यक्ति बनना है, तो अपने पड़ोस वाले अंकल की तरह बनो। तो वो बुजुर्ग हो गए और उनकी भी मृत्यु हो गई और उनके दोनों बच्चों की भी मृत्यु हो गई। तो वो ऊपर के वर्ल्ड में, द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, तो जब वो ऊपर के वर्ल्ड में जाते हैं तो दोनों बच्चे अपनी माँ से पूछते हैं इस ऑटो राइटिंग की पुस्तक में कि अगर माँ, अगर वो अंकल कौन से लोक में गए होंगे, जैसे हम बोलते हैं भूलोक, भुअरलोक, स्वरलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, कौन से लोक में होंगे। तो दोनों बच्चे कहने लगे कि अंकल तो बहुत अच्छे थे, बहुत सेवा करते थे, बहुत दान दक्षिणा करते थे, तो हो सकता है वो चौथे लोक में हो, बहुत हायर वर्ल्ड में हो। तो वो कहते हैं कि अच्छा चलो चेक करते हैं। तो वहाँ पर भी जैसे यहाँ पर अलग अलग स्कूल्स हैं, ऐसे ही हमारे जो एस्ट्रल वर्ल्ड है उसमें भी अलग अलग तरह के स्कूल्स हैं। तो चेक करने गए तो ना उनको 5वें लोक में मिले, ना चौथे लोक में मिले, ना तीसरे लोक में मिले। तो दूसरे लोक में कुछ उनके भी लेवल्स होते हैं, तो वो तीसरे लेवल पर वो मिले। तो तीसरे लेवल पर मिले तो पूछा गया कि भाई आपको ये वाला लोक कैसे मिला, इतना नीचे का, आप तो सारी ज़िंदगी दान दक्षिणा देते रहे। तो अंदर से जो वहाँ के जो मास्टर्स होते हैं, जो देवता हैं, उन्होंने पिक्चर दिखाया कि देखो तुम्हारे मन के अंदर क्या चल रहा है। तो जो मन के अंदर जो पिक्चर दिखाई तो उसमें बताया कि तुम्हारे मन के अंदर तो लेन देन चल रहा था कि अगर तुम किसी को खाना खिलाते हो, तुम किसी से आशा रखते हो, तो ये जो लेन देन है इससे आपका जो एक आत्मा का स्तर है वो नीचे गया है, आत्मा का स्तर ऊंचा नहीं उठा, इसी वजह से आप दूसरे लोक में ही सीमित रह गए।
तो इस बात से मेरे जीवन पे एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट आया कि हमें जब भी किसी की सेवा करनी है, जब भी किसी के साथ व्यवहार करना है, क्योंकि आज इस कोविड-19 में हम घर में पूरे परिवार के साथ रहते हैं, तो वो जो पूरे परिवार के साथ रहना है, उनके साथ मिलजुल के रहना, अपने मन के भावों को ख़त्म करना और द्वेष ना करना, किसी से जेलस ना करना, किसी के प्रति ईर्ष्या ना करना, ये भाव भी बहुत बहुत ज़रूरी है हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए। अगर मान लो कि रोग प्रतिरोधक शक्ति कमज़ोर हो रही है और आप मन से मजबूत हो रहे हैं, आप मन से किसी की बड़ाई करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो जशमोहिन एक लेडी है, अगर आप नेट के ऊपर डालेंगे तो ज़रूर से ज़रूर उसके बारे में बायोग्राफी पढ़िए। वो ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं और अभी अमेरिका में सेटल्ड है। पिछले 17-18 साल से खाना नहीं खाती हैं, वो सिर्फ ब्रह्मांड की ऊर्जा लेके जिंदा रहती हैं। तो वो उस लेडी से अमूमन हमारा मिलना हो जाता है बेंगलोर में। तो हम जब उससे मिले थे तो हमने पूछा कि तुमने कैसे शुरुआत की, कि तुमने खाना कैसे छोड़ा। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन की शुरुआत की एप्रिशिएशन से। मैं हर किसी को अप्रिशिएट करती हूँ, तो मेरे को ऐसे लगता है कि मेरे को अंदर से एक मेरे मन के स्तर पे और एक आत्मा के स्तर पर भोजन मिल रहा है। तो मेरे मन और आत्मा के स्तर का भोजन अगर इतना अच्छा है, मैं किसी दूसरे की बड़ाई करती हूँ, किसी दूसरे की सेवा करती हूँ, तो मेरी रोग प्रतिरोधक शक्ति हो ही नहीं सकता कि वो कमज़ोर हो जाए और हो ही नहीं सकता कि कोविड-19 जैसा वायरस हमारे नज़दीक आ जाए। तो ये बात है मदर नेचर की। देखो मदर नेचर हमें कितना कुछ देती है, पर हमें ही उससे लेना नहीं आता। हमारा जो मन है या हमारा दिमाग कहिए, क्योंकि मन तो यूनिवर्सल है जैसे कि बताया, और मन क्या करता है हमारे ब्रेन के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। क्या इम्पैक्ट डालता है, जैसा मैं सोचती हूँ, अगर मान लो मेरा 10 दिन पहले किसी से झगड़ा हुआ और आज 10 दिन के बाद मैं उस व्यक्ति से मिलती हूँ, तो मेरे दिमाग के ऊपर यही इम्पैक्ट है कि तो बहुत बेकार है, उससे तो झगड़ा हो, तो उससे तो बात नहीं करनी। हो सकता है कि वो 10 दिन के बाद वो बदल के आया हो, कुछ बात रखना चाहता हो, लेकिन मेरे मन के अंदर जो मैंने अर्थ निकाला उन वाक्यों का, वो ही वाक्यों का अर्थ मेरे दिमाग के ऊपर पड़ गया, और जो दिमाग के ऊपर पड़ा मैंने उसी के अनुसार व्यवहार किया उसके साथ। तो ये बहुत गलत चीज़ है, और इसी की वजह से मेरी इम्यून शक्ति जो है, इम्यून सिस्टम है, वो मेरा वीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इम्यून सिस्टम कैसे बनता है, वो चेतना से बनता है। वो कोई दवाई खाने से मजबूती पता नहीं आएगी या नहीं आएगी, लेकिन मन को शुद्ध रखने से तो 100% उसके अंदर एक शक्ति आती है। तो ये बातें आपको कुछ बातें बताई कि मदर नेचर और कोविड-19 के बारे में, और कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि एक हम कहते हैं कि हमें अपने हाथ धोने चाहिए, हैंड वॉश करना चाहिए, और हम सिंथेटिक जो चीज़ें लेते हैं उनसे हम अपने हैंड वॉश करते हैं। तो मदर नेचर हमें क्या देती है, जैसे नीम के पत्ते हैं आपके घर के चारों तरफ हैं, आप उनको उठाइए, टोकरी में डालिए, पानी में डालिए नीम के पत्ते, और नीम के पत्ते वाले पानी से अपने हाथ धोइए। सहंजना है, सहंजना तो एक ऐसा पेड़ है जिसकी हर चीज़ में बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अगर मल्टीविटामिन टेबलेट्स आपको लेनी है, तो मल्टीविटामिन टेबलेट्स की बजाय आप एक बीज, जो सहंजना की फलियाँ होती हैं, उसका सिर्फ एक बीज खा लेंगे तो मल्टीविटामिन हो जाता है। अगर आप उसके पत्ते बीज पानी में डाल देते हैं, तो पूरे छत्तीसगढ़ में आयुष के जो डॉक्टर्स हैं वो घर घर जाके समझा रहे हैं कि आप सहंजना के पत्तों को, बीजों को पानी के अंदर डालिए ताकि पानी आपका शुद्ध हो जाए। तो क्यों नहीं हम मदर नेचर से ये बात सीखें कि इतने सारे पत्ते हमारे पास चारों तरफ मौजूद हैं, लेकिन कभी हमारी ये हिम्मत नहीं होती कि हम उनको उठा के पानी में डाल लें और डालने के बाद हम उनका इस्तेमाल करें। नेचुरल वे में जीना चाहिए, जो प्रकृति ने हमें दिया है उसी के अकॉर्डिंग हमें जीना आना चाहिए, ना कि सिंथेटिक। क्योंकि शरीर सिंथेटिक नहीं है, शरीर की कोई लेबोरेटरी थोड़ा है कि उसी केमिस्ट्री में जाके हम लैब में गए और लैब में हमारा शरीर बन गया, और शरीर बनने के बाद हमने सिंथेटिक चीज़ें लेनी शुरू कर दी, और फिर हम चाहें कि सिंथेटिक चीज़ों से हम स्वस्थ हो जाएंगे, तो शायद नहीं हो सकते। तो इसलिए हमें नेचुरल वे में अपना जीवन उस मदर नेचर के साथ, इतना कुछ जिसने दिया है उसके साथ हमें रहना चाहिए, ताकि कोविड-19 क्या किसी भी तरह के वायरसेस आने वाले टाइम में, पता नहीं किस किस तरह के वायरसेस अगर आते हैं, तो सिर्फ
कौन बचा सकता है हमें? हमें बचा सकता है ध्यान, योग, प्राणायाम और साथ में हमारा मदर नेचर। जो मदर नेचर हमें मुफ्त में सब कुछ देता है। पेड़ हमारे से लेते कुछ नहीं है, पशु पक्षी हमारे से कुछ नहीं लेते हैं, बल्कि वो हमें देते हैं। तो हमें उनसे जो भी चीज़ें मिलती हैं वो हमें लेना चाहिए। उसके बाद आती है डिस्टेंसिंग, जो डिस्टेंस मेंटेन करना है। आप देखिए कि अगर कोई व्यक्ति नहीं नहाता है, कोई व्यक्ति सिर नहीं धोता है, तो उसके सिर में जुएं हो जाती हैं। सेम इसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर अगर अच्छे भाव नहीं है, तो जो हमारी ऑरा कहते हैं ना, भगवान के चारों तरफ वो वाइट कलर की ऑरा दिखती है। इसी तरीके से एक मशीन आ गई है, उसका नाम है GDV मशीन या किरलियन फोटोग्राफी है। आप नेट के ऊपर जाके जरूर से जरूर देखें। तो हमारे शरीर से जो ऊर्जा निकलती है वो ऊर्जा किस तरह की होती है, वो ऑरा होती है। तो इसलिए डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पता नहीं मैं कैसा सोचती हूँ, मैं अगर अच्छी नहीं हूँ, अच्छा भाव नहीं है, तो मेरा जो साथ में बैठा वाला व्यक्ति है उसको भी उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए डिस्टेंस मेंटेन रखना ही चाहिए। कोरोना वायरस चला भी जाए तो भी डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे हमारी ऑरा के ऊपर, हमारी एनर्जी के ऊपर भी इफेक्ट आता है। और कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि हम पहले हाथ मिलाना, तो पहले हमारा एक वेदों में बताया है कि हम नमस्ते करते हैं। तो नमस्ते करते हैं तो जैसे ही हम हाथ जोड़ते हैं तो हमारा हृदय चक्र विकसित होता है। तो वो हृदय चक्र विकसित इसलिए होता है क्योंकि हम नमस्ते का भाव रखते हैं, झुकते हैं। वो झुकने से क्या होता है कि हमारे पीछे की जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो फ्लूइड होता है वो शेक होता है। जैसे ही हम किसी के प्रति ह्यूमिलिटी यानी कि झुक कर उसका अभिवादन करना, नमस्कार करना, ग्रैटिट्यूड की भावना रखना, ये सब हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाते हैं। तो थैंक यू शीला पुनिया मैडम, थैंक यू स्कूल की ऑल मेंबर्स एंड अथॉरिटीज़, थैंक यू सो मच कि मुझे मौका दिया। आपने मदर्स नेचर, क्रैडल और